A very good evening to all of you. I welcome you all to the daily issue analysis दिया मेंस. हमने ये इनिशिएटिव पिछले साल और उसके पिछले साल भी किया था, wherein we used to come out with an analysis of a mains related any important issue and provide a 360-degree analysis of the same in the video. पिछले साल और उसके पिछले साल हम ये रोज़ करते थे, बट अभी we will get started with the issue analysis part. And then let us know in the comment section if you want this analysis more often, more frequently. Then accordingly we'll be able to adopt as per your demand. So this issue analysis initiative will be very helpful for anyone who is preparing for UPSC or state PCS, who is writing mains in 2024 or 2025. इसमें हम क्या करते हैं, in the last 1.5 years, whatever issues have been very very important from the mains perspective, we will take up those issues and we will cover them in a very holistic manner. तो इसके अलावा, इसके बियॉन्ड एंड अबव आपको और कुछ भी पढ़ना नहीं रहेगा. इफ़ यू रीड एंड मेक नोट्स ऑफ दिस मच, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. एंड ऑल्सो व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट मेकिंग नोट्स, लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर व्हेन वी डिस्कस्ड द डेली इशू एनालिसिस वीडियो ऑन यूट्यूब, simultaneously we used to provide handwritten notes on our Telegram channel. So this year again we will be doing the same. So the link for the Telegram channel has been posted in the description. Feel free to join the Telegram channel and have access to those free handwritten notes out of these issue analysis. So during the lecture, keep your focus mostly on the lecture and then internalizing whatever I'm telling, and the notes you can have a free access of the same in the Telegram channel. Let's start it. The most important topic that has been in news in the recent times is the increasing terror attacks in Jammu and Kashmir. Okay, that is especially in the Jammu region. ठीक है, तो टेरर अटैक्स अभी जम्मू में बढ़ गया है, तो इसी के बारे में हम लोग पूरा आज एनालिसिस करेंगे. सो फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज़ द रीसेंट न्यूज़. Today, why are we discussing about the terror attacks in J&K? Second, we will see why has there been an increase in the attacks. पिछले कुछ सालों से थोड़ा बहुत शांति था, तो अभी अचानक why there has been an increase in the attacks is something that we will discover. Third, हम ये देखेंगे what has been the departure from earlier attacks. So J&K as a region we know कि हमेशा कहीं बहुत ज़्यादा पीसफुल तो वो रहता नहीं है. ठीक है, कुछ ना कुछ अटैक्स तो होते रहते हैं, बट ऐसा क्या है आजकल के अटैक्स में which sets it apart from the previous earlier attacks जो उस region में पहले से हो रहे हैं. Okay, then we will also discuss the challenges in overcoming this whole problem. ठीक है, तो अभी जम्मू में increasing terror attacks हो रहा है, अब उसको overcome करना है, तो उसमें बहुत सारे challenges हैं. अब वो challenges क्या है, why it will become very difficult and challenging for us to bring down these attacks. ठीक है, वो देखेंगे. And then lastly, of course, हम way forward भी देखेंगे कि आगे चल के हमें क्या करना चाहिए कि हम ऐसे attacks को preemptively रोक पाए हम लोग. ठीक है, उसको अगर करने से पहले हम लोग उसको हैंडल कर पाए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी द रीसेंट न्यूज़. देखिए, एज यू कैन सी 2022 में देर वर 3 अटैक्स दैट हैपन इन द रीजन. ठीक है, 2023 में अगेन देर वर 3 अटैक्स दैट हैपन इन द जम्मू रीजन. 2024 में अभी तो जुलाई ही चल रहा है, राइट, तो जुलाई तक ही ऑलरेडी 6 अटैक्स हो चुके हैं. Okay, so this shows that there is an increasing in intensity or frequency in the number of attacks. अब जितने भी अटैक्स हुए हैं वो अभी पिछले 2 महीने में जून और जुलाई में ही सारे अटैक्स हुए हैं. ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बैक टू बैक अटैक्स हुए हैं इन द जम्मू रीजन. ठीक है, सो ये एक कॉन्टेक्स्ट था, ये एक न्यूज़ है. ठीक है, तो पहले हुआ था सम ऑफ द रीजन्स दैट हैव बीन इन न्यूज़ इज कथुआ. ठीक है, सांबा रीजन. ठीक है, इसके अलावा एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक बस के ऊपर विच वाज एक्चुअली टेकिंग द पिलग्रिम्स, तो उस बस के ऊपर भी अटैक हुआ है. सो दिस इज़ अनदर दिस. एंड देन देयर वाज अ डोडा विलेज जिसमें अटैक हुआ है. सो लाइक दिस देयर हैव बीन सेवरल रीजन्स दैट हैव बीन इन द न्यूज़ इन द लास्ट 2 months जहाँ पे ये अटैक्स हुए हैं बार बार. अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये अटैक्स अभी क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं जब पहले नहीं थे. So now we will see what are the reasons for increase in the attacks. सबसे पहला जो रीज़न है which explains the increase in the attacks is the complacency. मतलब आफ्टर 2007 बेसिकली जम्मू हैज़ रिलेटिवली बीन पीसफुल. ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैक्स नहीं हो रहे. ठीक है, तो रिलेटिव एक पीस था वहाँ पे. तो बिकॉज ऑफ अ रिलेटिव स्टेबिलिटी इन द रीजन, तो ऐसा हो सकता है कि दैट माइट हैव सेट इन सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेसेंसी अमंग द ट्रूप्स विच आर स्टेशन देयर.
तो इस कॉम्प्लासेंसी की वजह से बहुत सारे जो प्रोएक्टिव ऑपरेशंस है विच द आर्मी शुड हैव कंडक्टेड, तो उतने उस हिसाब से नहीं हो पाया, बिकॉज रीजन में वैसे ही रिलेटिव स्टेबिलिटी था, तो एक कॉम्प्लासेंसी सी सेट हो गई वहाँ के स्टेशन ट्रूप्स में, तो दे डिड नॉट कैरी आउट अ लॉट ऑफ प्रोएक्टिव ऑपरेशंस। इसकी वजह से मतलब ये हुआ कि अच्छा बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं चौकन्ना थे, तो इसीलिए अटैक्स भी होने स्टार्ट हो गए। द सेकेंड रीज़न इज़ द ट्रूप रिडक्शन। सो यू नो वेरी वेल कि LAC दैट इज़ अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ होता रहता है, हाउ मच चाइना कीप्स इंट्रूडिंग इन दैट रीजन। सो बिकॉज ऑफ दैट कई सारे जो ट्रूप्स इस रीजन में स्टेशन थे उनको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मूव कर दिया गया। नियरली इट इज़ सेड एज पर एन एस्टिमेट कि 4,000 से 5,000 जो काउंटर टेरर ट्रूप्स थे उनको जम्मू रीजन से हटा करके, इंटरनेशनल बॉर्डर रीजन से हटा करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उनको प्लेस कर दिया गया। सो बिकॉज ऑब्वियसली देर वॉज लेस नंबर ऑफ ट्रूप्स, तो इसीलिए पेट्रोलिंग जो है वो भी लेस फ्रीक्वेंट होती गई, क्योंकि उतनी ज़्यादा मात्रा में ट्रूप्स अब है नहीं वहाँ पे। तो जितने भी ट्रूप्स हैं अब उनको ज़्यादा एरिया कवर करना है, तो इसीलिए उनकी पेट्रोलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो गई। तो ट्रूप रिडक्शन इज़ अनदर रीज़न वाई देर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द अटैक्स। थर्ड इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। आपको पता है 2019 में आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। सो जब ये एब्रोगेट हुआ तो क्या हुआ, देर वर टू थिंग्स दैट वर फॉर्म्ड, वन इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओके, सो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मतलब इट विल हैव अ लेजिस्लेटर, बट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल नॉट हैव अ लेजिस्लेटर. So this was what was formed when Article 370 was abrogated in 2019. Now, when this constitutional change happened, it really affected the people across the border, like Pakistan. तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि India has trying to centralize the control in Jammu and Kashmir. ठीक है, जब कोई भी रीजन यूनियन टेरिटरी हो जाता है तो सेंटर के पास ज़्यादा कंट्रोल चला जाता है, राइट। तो ये सब इनको अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए दे वर ऑलवेज प्लानिंग फ्रॉम दैट टाइम कि अच्छा यहाँ इस रीजन के पीस को, इस रीजन के हारमोनी को कैसे तो करके डिस्टेबलाइज करना है। तो अभी जो ये इंक्रीज़ हो रहे अटैक्स में, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस एजेंडा, एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है कैसे इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करना है, बिकॉज दे वर रियली अनहैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट हैपेंड इन 2019। ठीक है। द नेक्स्ट रीज़न इज़ द रेड्यूस्ड ग्राउंड कनेक्ट। तो पहले क्या होता था, जो लोकल्स होते थे, लोकल्स वुड गैदर अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस फॉर द आर्मी कि कहाँ पे क्या टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, कहाँ पे क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो ये सब लोकल्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस देते थे, जिसको हम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है। सो द लोकल्स यूज्ड टू कम एंड गिव द इंटेलिजेंस टू द सिक्योरिटी फोर्सेस कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस है, ऐसा ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह। ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, देयर इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो अभी हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। इस वजह से हम लोकल्स पे डिपेंडेंट कम हो गए हैं, लोकल्स को हम कम नर्चर कर रहे हैं टू गैदर इंटेलिजेंस फॉर अस। बट ये जो रीजन है, जम्मू वाला रीजन जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत डेंस है। इतनी डेंस फॉरेस्ट में अगर लोकल्स अगर हमें इनपुट्स ना दे, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के ज़रिए इतना अच्छा इंटेलिजेंस गैदर करना उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं है। सो इन द टेरेन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, लोकल्स का रोल इन गिविंग अस गुड स्पेसिफिक ऑपरेशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ टेक्नोलॉजी से बात बनेगी नहीं, बिकॉज वी स्टार्टेड रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी। ये जो ग्राउंड कनेक्ट है वो थोड़ा लूज़ होने लगा। जब से ये लूज़ होने लगा, हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस मिलता नहीं है कि ये टेररिस्ट क्या एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं। ओके, तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अब टेररिस्ट और अटैक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ द सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द टेररिस्ट। ठीक है। अगर आजकल की बात करें, अभी जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं उसमें टेररिस्ट अभी यूज़ कर रहे हैं थर्मल इमेजरी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। दे आर यूजिंग द नाइट विजन कैमराज, दे आर यूजिंग, ओके, दे आर यूजिंग द M4 राइफल्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रिसिशन वाले इक्विपमेंट्स को वो यूज़ कर रहे हैं टू कैरी आउट दीज टेरर अटैक्स। सो बिकॉज दे हैव सच गुड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, तो उनके लिए अटैक्स को प्लान करना, उसको कोऑर्डिनेट करना और उसको एग्जीक्यूट करना ज़्यादा आसान हो गया है पहले से, और वो ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल हेल्प ले करके।
ठीक है, दैट इज़ अनदर रीज़न, क्योंकि द ईज़ ऑफ प्लानिंग एंड द ईज़ ऑफ एग्जीक्यूशन दैट कम्स विद द टेक्नोलॉजी, दिस इज़ अनदर रीज़न वाई द अटैक्स हैव इंक्रीज्ड. नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज्ड फंड फ्लो. सो अगर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे अभी ड्रोन्स जो है एयर स्पेस में इंक्लूड कर लेते हैं फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज़, और उसमें ड्रग्स होते हैं, एक्सप्लोजिव्स होते हैं, वेपन्स होते हैं. ओके, सो and also the narco terrorism. Because of narco terrorism, again a lot of funds are being given to these terror networks. तो अब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है थ्रू द ड्रग्स, थ्रू वेपन्स, थ्रू एक्सप्लोजिव्स. ठीक है, ये ड्रोन्स जो है वो मनी तक ट्रांसपोर्ट कर देती है टू द जो भी स्लीपर सेल्स होते हैं उनको मनी तक ट्रांसपोर्ट कर देती है ड्रोन्स, सो दैट दे हैव सम फंड्स टू प्लान एंड एग्जीक्यूट दीज टेररिस्ट ऑपरेशंस. ठीक है, नार्को टेररिज्म, अगेन दीज ड्रग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फंड फ्लो हो जाता है टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस. सो बिकॉज दे हैव इंक्रीज्ड डिस्पोजल ऑफ फंड्स एट देयर हैंड्स, तो ऑर्गेनाइज करने में, इसको एग्जीक्यूट करने में, टेरर एक्टिविटीज़ को उनके लिए ज़्यादा आसान है, एंड दे आर डूइंग इट मोर फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट इज़ अ डिफ़िकल्ट जियोग्राफी. ठीक है, अब यहाँ जम्मू की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे यू हैव रग्ड माउंटेन्स, राइट, माउंटेन्स है, रिवर स्ट्रीम्स है वहाँ पे, ऑल राइट, और इसके अलावा वहाँ डेंस फॉरेस्ट्स है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़ रिलेटेड टू द जियोग्राफी, कैरिंग आउट इफ़ेक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस प्रिसाइज थिंग, अभी टेररिस्ट उसका फ़ायदा उठा के ज़्यादा अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं. ओके, so these are the 7 reasons due to which there has been an increase in the number of attacks in Jammu in the recent months. Okay, next we will take a look. जब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर एज अ रीजन हैज़ बीन पीसफुल अर्लियर. ठीक है, पहले भी तो बहुत सारे अटैक्स हुए हैं. सो हाउ आर दोज अटैक्स डिफरेंट फ्रॉम द अटैक्स दैट आर हैपनिंग नाउ? नाउ टेक अ लुक एट दिस मैप. ओके, इस मैप में अगर आप देखोगे, सो इंडिया का जो ये मैप आपको दिख रहा है, दिस इज़ द रीजन. ठीक है, अभी ये जो क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं. ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस दैट वेयर ऑल अटैक्स हैव हैपेंड. रजौरी है, कथुआ है, गंदो है, डोडा है, माछेड़ी है, रियासी है. तो ऑल दीज प्लेसेस आर क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर IB. So these are the regions where the attack is happening. Now coming back to the departure. So the departure is that the attacks that are happening recently are happening close to the international border, like the Kathua Samba region. ओके, तो पहले थोड़ा सा इंटरनल अटैक्स होते थे लाइक रजौरी, पूंछ वगैरह, बट अभी जो है अटैक्स ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक हो रहे हैं, लाइक कथुआ सांबा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आर्मी का वेस्टर्न कमांड यहाँ पे स्टेशनड है, बट आर्मी का वेस्टर्न कमांड हैज़ नॉट मच ऑफ एन एक्सपीरियंस इन कैरिंग आउट काउंटर टेरर ऑपरेशंस. ओके, सो दे विल नीड टू बी अ लिटिल बिट ऑफ फेमिलराइजेशन, तो उनको कराना पड़ेगा इफ़ दे हैव टू हैंडल दीज अटैक्स. ओके, सो पहले से डिपार्चर जो है, द नंबर 1 यही है कि पहले अटैक्स वर हैपनिंग इन एरियाज लाइक रजौरी, पूंछ वगैरह, सो विच आर अ लिटिल इंटरनल, बट नाउ द अटैक्स आर हैपनिंग वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर. Okay, the second departure is now they have opened a new theater in the form of Jammu. इसका मतलब क्या, पहले जो कश्मीर था वहाँ पे अटैक्स होते थे, द वैली, द कश्मीर वैली वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी नोटोरियस फॉर द टेरर अटैक्स. बट अभी थिएटर शिफ्ट होके जम्मू पे चला गया है. अभी जम्मू हैज़ बिकम द एपी सेंटर ऑफ अटैक्स. ओके, कश्मीर अभी नहीं है, अभी जम्मू में शिफ्ट हो गया है. एंड दिस इज़ हैपन स्पेशली आफ्टर व्हाट वी डिस्कस्ड प्रीवियसली कि जम्मू एंड कश्मीर का जब स्टेटस बदला, तो कश्मीर वैली में एक इट बिकेम अ रिलेटिवली पीसफुल. ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम हो गया वहाँ पे, रिलेटिवली पीसफुल हो गया, अटैक्स कम हो गए, सिविलियंस की डेथ्स कम हो गई, टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया. तो ये सब हो गया आफ्टर द स्टेटस. Okay, because the center was able to now exercise better control over this region. But because peace started prevailing in the valley for much longer than before, तो ये जो terrorist elements है across the border, especially from Pakistan, तो उनको लगा like जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा एंड ऑल, they felt that अभी कैसे तो करके इस region को फिर से destabilize करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस डिस्टेबलाइजेशन करने की स्ट्रैटेजी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया थिएटर ढूंढा. अब चलो हम कश्मीर वाले में नहीं करते, अब हम अपना थिएटर ही बदल देते, अब हम जम्मू में करना शुरू करें.
ठीक है, दिस इज़ अ सेकेंड डिपार्चर। पहले जब वैली में ज़्यादा अटैक्स होते थे, अभी जम्मू में हो रहा है। ओके, द थर्ड डिपार्चर इज़ अ फॉरेन टेररिस्ट जो अभी यूज़ हो रहे हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द अटैक्स जो मैंने पिछले वाले स्लाइड में भी आपने मैप में देखा होगा, तो काफ़ी सारे अटैक्स में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है वो फॉरेन टेररिस्ट है, कोई इंडियन का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। ओके, सो दे हैव बीन फंडेड, financially motivated, radicalized all across the border, okay, from पाकिस्तान। ठीक है, सो इंडिया का इसमें इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, मोस्टली फॉरेन टेररिस्ट ही इन्वॉल्व है। बट पहले के अगर आप टेररिस्ट अटैक्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंडियंस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता था। ओके, जो लोकल्स थे वहाँ के लोकल्स को रेडिकलाइज किया जाता था। ओके, लाइक आपने देखा होगा कि लोकल्स कैसे स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स के अगेंस्ट वगैरह, तो लोकल्स को ही इस्तेमाल करते थे। कई सारे लोकल्स ने सुसाइड बॉम्बर्स बने हैं कई सारे लोकल्स, राइट। तो पहले इंडियंस भी इन्वॉल्व रहते थे, जो लोकल लोग थे वो इन्वॉल्व रहते थे, बट अभी यहाँ लोकल लोग से ज़्यादा जो फॉरेन टेररिस्ट्स का हाथ है वो ज़्यादा है अभी के अटैक्स में। दिस इज़ अ थर्ड डिपार्चर। द फोर्थ डिपार्चर इज़ अ सेलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स। अगर पहले के अटैक्स आप देखोगे, जैसे हम बात कर रहे थे लोकल्स थे, लोकल्स वर रेडिकलाइज्ड एंड द लोकल्स वुड स्टार्ट पेल्टिंग द स्टोन्स व्हेन दे सी द सिक्योरिटी पर्सनल। सो अब मान लीजिए कोई ये विलेज है, तो इस विलेज में कुछ कुछ पता चल रहा है कि अच्छा देयर इज़ अ हाइड आउट, टेररिस्ट हाइड आउट, तो सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे आते हैं, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इन्हीं सिक्योरिटी पर्सनल पे वो स्टोन पेल्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ऐसा होता था पहले के अटैक्स। अभी क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल पे कोई अटैक नहीं हो रहा है। अटैक मतलब जो डायरेक्टेड है वो मोस्टली सिविलियंस के ऊपर डायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल अभी 2023 में डंगरी एक विलेज का नाम है जम्मू में, तो वहाँ पे एक मसाकर हुआ था जिसमें शायद 7 से 8 लोगों को मार दिया था टेररिस्ट ने। ठीक है, अब जो रियासी का भी मैंने बताया जो जून में हुआ अटैक, so this was an attack on a bus, okay, and this bus was carrying pilgrims. So basically अभी के attacks है they are targeting more on the civilians and not on the security personnel. Okay, why? Because उनको ये लगता है कि जब हम civilians को target करते हैं तो communal feelings को hurt करना ज़्यादा आसान है, because civilians are like common innocent people, right? तो जब आप उनको hurt करोगे तो communal feelings, communal hatred आप ज़्यादा अच्छे से फायर कर पाओगे और इस वजह से रीजन को जल्दी से और आसानी से डिस्टेबलाइज कर पाओगे। ओके, सो नाउ द टारगेट हैज़ ऑल्सो शिफ्टेड टूवर्ड्स सिविलियंस मोर। तो ऑल ऑफ दीज आर अ डिपार्चर कि पहले के अटैक्स कैसे होते थे और अब के कैसे हो रहे हैं। नाउ लेट अस गेट इनटू द चैलेंजेस इन हैंडलिंग दीज अटैक्स। Okay, the first thing is a capability. Like how I explained that the Army's Western Command, right? Army Western Command is situated close to the Kathua Samba region. Okay, but the Army Western Command has not been traditionally trained in counter terror ops. Okay, they need some familiarization. ठीक है, इस वजह से अभी कैपेबिलिटी इज़ समथिंग दैट इमीडिएटली हमको बूस्ट करना है, जो कि अभी इमीडिएटली बहुत अच्छा नहीं है। ओके, सो काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग एंड दैट कैपेसिटी बिल्डिंग इज नीडेड। दिस कुड बी अ चैलेंज इन द शॉर्ट टर्म। जब तक हम वो कैपेसिटी बिल्ड ना करें तब तक इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू मेट आउट दिस चैलेंज। सेकेंड इज द जियोग्राफी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, रग्ड माउंटेन्स है। ओके, देन वी हैव डेंस फॉरेस्ट। सो इस सब की वजह से वहाँ पे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल है, और जब कोई इन्फिल्ट्रेशन होता भी है, इवन टू रिकग्नाइज दैट, इवन टू फाइंड आउट दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द टेरेन ही वहाँ का ऐसा है। ओके, नेक्स्ट इज़ अ कम्यूनल एंगल। सी, पहले कश्मीर में जब अटैक्स होते थे, कश्मीर वॉज प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम। ओके, कश्मीर वैली प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स है, तो तब चलो बात ठीक है। बट अभी जम्मू में क्या है, जम्मू हैज़ अ मिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मुस्लिम्स भी है, हिंदूज़ भी है, तो ऐसे मिक्स ऑफ कम्युनिटीज़ है जम्मू में। सो अभी जब अटैक होता है जम्मू के ऊपर, तो इट इज़ वेरी ईजी टू इग्नाइट द कम्यूनल फायर। ठीक है, तो अभी कोई बोल देगा कि अच्छा ये अटैक मुस्लिम्स ने हिंदू पे कराया है कि हिंदू ने मुस्लिम्स पे कराया, तो ऐसे बोल के इट इज़ वेरी ईजी टू इग्नाइट द कम्यूनल फायर नाउ। सो वंस द टारगेट बिकम द सिविलियंस, जब टारगेट हो जाते हैं, और फिर वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे देयर इज़ अ मिक्स ऑफ कम्युनिटीज़, सो इट विल बी वेरी ईजी टू ब्रीड डिस्ट्रस्ट अमंग्स द कम्युनिटीज़ एंड देन इनसाइट वन अगेंस्ट द अदर। तो इस वजह से कम्यूनल क्लैशेस भी होने के चांसेस है अभी। सो दिस इज़ अनदर चैलेंज दैट वी विल हैव टू टैकल
अच्छे से कि कोई भी अटैक हो रहा है जम्मू में, किसी भी कम्युनिटी के लोगों पे ऊपर हो रहा है, वो एक कम्युनल टेंशन में ना बदल जाए। ओके, तो राइटस सिचुएशन में ना बदल जाए, इसका ध्यान हमें रखना है। दिस इज़ अगेन अ चैलेंज। नेक्स्ट इज चेकिंग द इन्फिल्ट्रेशन। ओके, सो जब पहले पाकिस्तान के जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते थे, सो दे यूज टू डू यूजिंग द मीरपुर रीजन वगैरह से वो करते थे। सो दीज वहाँ मीरपुर का जो डेमोग्राफी है, विच वॉज मोस्टली मुस्लिम्स की जो डेमोग्राफी है, इट वॉज ईजी टू टेल पाकिस्तानी वर्सेस एन इंडियन कि अच्छा ये तो पाकिस्तान का है, ठीक है। आप इजीली उनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के बोल सकते थे कि अच्छा ये शायद पाकिस्तान से आया है, इसके जो फिज़िकल ट्रेड्स है वो यहाँ के लोगों से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अभी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर इनटू द जम्मू रीजन, जहाँ पे एक मिक्स ऑफ कम्युनिटीज़ है, राइट, तो वहाँ पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल देम अपार्ट, ठीक है। तो इस वजह से इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना मुश्किल है अभी, राइट। सो दिस इज़ अनदर चैलेंज. Lastly, it is the advanced tactics that the terrorists are now using. वो टनल डक कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, ओके, बॉर्डर के अक्रॉस टनल डक कर रहे हैं और टनल के थ्रू आ जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं बॉर्डर को, ये पता भी नहीं चल रहा है. दे आर यूजिंग सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स लाइक इरिडियम सैटेलाइट फोन्स, तो सो दैट वो बहुत ही सेफली एंड सिक्योरली कम्युनिकेट कर पाए, ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट कर पाए, और वो कहाँ पे है उनके हाइडआउट्स का कोई पता भी ना चले. तो इस सब के लिए वो इरिडियम सैटेलाइट फ़ोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट. सो दे हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज एडवांस्ड टैक्टिक्स दैट दे आर यूजिंग. सो दिस इज़ अगेन क्रिएटिंग अ चैलेंज इन हैंडलिंग द रीसेंट राइज इन द टेरर अटैक्स. सो अब हो गए चैलेंजेस, नाउ लेट अस लुक एट फॉरवर्ड. सबसे पहले इज़ अ डिप्लॉयमेंट पैटर्न. लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर कि अब अर्लियर जो ट्रूप्स जम्मू रीजन में अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर थे, उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मूव कर दिया गया था. नियरली 4,000 to 5,000 ट्रूप्स को मूव कर दिया गया था. दिस हैड लेड टू अ वेरी थिन डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, राइट. नाउ जब हमें पता है कि अभी जम्मू रीजन में अटैक्स बढ़ रहे हैं, इट इज़ हाई टाइम कि हम ये डिप्लॉयमेंट के पैटर्न को सही करें एंड वी ब्रिंग इन मोर ट्रूप्स. ओके, हमें वहाँ का बॉर्डर को बेटर मैनेज करना चाहिए. ओके, एंड वी मस्ट ऑल्सो बी माइंडफुल कि जब हम कश्मीर के रीजन से जम्मू के रीजन में हम ट्रूप्स को माइग्रेट कर रहे हैं, हमें कश्मीर के रीजन को पूरा अभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है. वी नीड टू एक्सरसाइज कॉशन इन कश्मीर, क्योंकि वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो फिर से रीग्रुप होकर कश्मीर में अटैक्स स्टार्ट कर सकते हैं. सो हमें प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट पैटर्न बनाना है टू मैनेज आवर बॉर्डर्स, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा डिप्लॉयमेंट तो करना ही है जम्मू में, बट एट द सेम टाइम कश्मीर को हमें अभी इग्नोर नहीं करना है. ओके, सेकेंड एज अ ग्राउंड कनेक्ट, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है, लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर, इन दैट रग्ड माउंटेनियस टेरेन, डेंस जंगल्स एक्सेट्रा. रिलाइंग सोली ऑन टेक्नोलॉजी फॉर प्लानिंग योर ऑपरेशंस फॉर गेटिंग द इंटेलिजेंस, वो सही नहीं होगा. तो इसीलिए अभी हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए एक ह्यूमन कनेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो वी नीड टू नर्चर पीपल सो दैट वो हमारे लिए अच्छा इन्फॉर्मेशन ले आ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इंसेंटिवाइज. ओके, तो अभी क्या है, जो एसपीओज है, जो मतलब जो लोकल आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, पहले ये स्कीम था कि उनको हम कांस्टेबल्स में प्रमोट करते थे व्हेन दे डिड गुड जॉब, ठीक है. अब ये हमें करना है सो दैट लोगों में भी जो इन्फॉर्मेशन ला के भी दे रहे हैं अबाउट द ग्राउंड वट एवर इज़ हैपनिंग, तो उनके पास भी एक इंसेंटिव रहे कि हाँ, उनको अच्छा स्पेसिफिक क्रिस्प एक वो है जो प्रिसाइज इंटेलिजेंस ला के देना है, राइट. सो नेक्स्ट इज़ अ विलेज डिफेंस गार्ड्स. अब ये क्या है, लोकलाइट्स जो विलेजर्स है उन्हीं को आप अच्छे से ट्रेन करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब अटैक होता है तो सिक्योरिटी तो फिर आएगी ही बचाव के लिए बाद में, बट इट्स द विलेजर्स और द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, राइट. अभी जब लास्ट ईयर इन 2023 जब डंगरी विलेज में मैंने बताया था अभी पिछले स्लाइड्स में कि जब मैसेकर हुआ था, उसके बाद जो विलेज डिफेंस गार्ड्स है उनको काउंटर टेरर ऑपरेशंस में थोड़ा सा ट्रेन किया गया था, सो दैट दे कैन रिस्पॉन्ड एंड दे कैन प्रोटेक्ट देयर पीपल. जब ऐसी सिचुएशन आए, जब अटैक्स हो रहे हो, तो दे कैन प्रोटेक्ट देयर पीपल. तो हमें इस तरीके की भी थोड़ी लोकल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी. एंड लास्टली इज़ अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, ठीक है. 2014 के बाद से इलेक्शन ही नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में.
सो हमें पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ पे लाने की ज़रूरत है. येस, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी बट इट स्टिल हैज़ अ लेजिस्लेटर, राइट. सो वी नीड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन द रीजन. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन को बोल भी दिया है कि September 30th, इसी साल September 30th से पहले जम्मू कश्मीर में पोल्स हो जानी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी. एक पीपल का से एक कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. सो फॉर दैट एंड पीपल विल ऑल्सो हैव देयर वॉइस. उनको एक वाल्व मिलेगा वेंट आउट करने के लिए टू गिव इनपुट्स एंड एवरीथिंग. सो इसीलिए हमें अभी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन लेना पड़ेगा. सिंस 2014 कोई भी गवर्नमेंट नहीं आई है. सो वी मस्ट एडहर टू व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टोल्ड द ECI कि September 30th तक पोल्स करो और गवर्नमेंट बनाओ. ठीक है. सो दीज आर द 5 वे फॉरवर्ड दैट वी नीड टू हैव इन ऑर्डर टू टैकल द इंक्रीजिंग राइज इन द टेरर अटैक्स इन द जम्मू रीजन. अब ये डिस्कशन हो चुका है कंप्लीट. द इंटायर हैंड रिटन नोट्स ऑफ दिस विच इज़ गोइंग टू बी इन द 1 page. Okay, that will be posted on the Telegram channel, so you can visit the Telegram channel and download your notes from there. And we always insist that whatever topic you are reading, whatever issues you are covering, always try to make a 1 page revision friendly notes, because बाद में आपके notes इतना ज़्यादा accumulate हो जाता है, इतना ज़्यादा voluminous हो जाता है that you won't be able to manage it well. Okay, so have this 1 page notes from the Telegram channel and then start compiling those notes so that आपके पास एक revision friendly notes रहे and you'll be able to revise it multiple times. ठीक है. So thank you all the best.